ये क्या है, पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा यूनिट कंप्लीट है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा चीज़ बताया था आप लोगों को, आप लोगों ने मे बी नोटिस ना किया हो, सो प्लीज़ मार्क इट प्रॉपरली। द फर्स्ट important question here, already we have mentioned that there are many questions regarding your concept of growth and concept of development, principle, factors, aspects and stages. Okay, so as per that यहाँ पे कितना करना है, 1 से लेके 1.4 तक करना है, एंड दैट वन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो इसको ना करने से भी चलेगा। आउट ऑफ दैट वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज फर्स्ट वन, देन 1.3, 1.3 एंड 1.4 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, सो ऐसा है, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड यूनिट already we covered the 5 questions. That means the first one is the cognitive theory, long question. That one is your long question. The psychosocial theory of development, Erickson. For ANU, Acharya Nagarjuna University, that one is long question. Okay, this question is long, and this two, the last two, that is a theory of psychosexual, not psychosocial, psychosexual and emotional development. These are short question, SQs. These three are long question. Theory of moral development, psychosocial theory of development, cognitive theory of development. Again, notice that one point, that your short questions from this unit just like haphazardly comes under haphazard point. That means that may be mentioned as, what do you mean by cognitive development? Write about the cognitive development with the different stages. Okay, that type of question also will come. Okay, the second point is that write about the different stages of Erickson. This one is also short question. Again, what is the conventional point of moral development, conventional stage of moral development or conventional level of moral development? This short topics from the long one is come under short question. Okay, so please mention that or notice that these all questions are important for your paper, because your paper contains almost 50 marks short question, 50 marks short question. So 50 marks short question है, 5 मार्क करके लिखना है। 5 मार्क में कितना लिखोगे, 1 or 2 पेज, maximum to maximum 2 page, 2.5, otherwise 1 page is minimum, 1 page is minimum, and mark is just like in 1 page you get 1 or 2 marks. If you write 2.5 or 2 pages, then you will get 4 marks. Okay, सो इसको माइंड में रखना पड़ेगा कि कितना लिखना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग में मैं डिविजन्स दे रही हूँ, बट ये है कि लॉन्ग में प्रिपेयर करोगे तो उसमें शॉर्ट आ जाएगा। अभी बोलोगे मैम इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहते हो तो दिस वन इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो इसको स्किप कर सकते हो। दिस वन इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो इसको एक स्किप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बाकी के 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर सीटेड एग्जामिनेशन, ओटेड एग्जामिनेशन। सो एज पर दैट पॉइंट यू हैव टू प्रिपेयर द 4 अपर 4। ओके, अभी देखो 2 यूनिट पूरा कंप्लीट ना, 2 यूनिट पूरा कंप्लीट। अभी बोलना है कि यूनिट 3 में क्या आएगा। सो यूनिट 3 जस्ट लाइक द चाइल्डहुड एज ए पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन एज द वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड इज द सोशलाइजेशन। ऑलरेडी स्टार्टेड अर्लियर, हमने स्टार्ट कर दिया है अर्लियर क्लास में कि ये क्या है सोशलाइजेशन, बट फिर भी बोल देती हूँ कि आपको क्या क्या इस यूनिट में पढ़ना है। दिस क्वेश्चन ऑलरेडी ओवर। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब हो गया चाइल्डहुड स्टेज में एस्पेक्ट्स के बारे में लिखना है, तो ऑलरेडी वही डिस्कस ना, we had discussed it, that is the physical, cognitive, social, emotional and language development during the childhood. Childhood means again it is divided into the 2 parts, early and the later childhood, early and the later childhood. So this question is very important for unit 3 also, ठीक है। And this one is a long question, not a short question, long question. Maybe this type of question also come under the short question, as write about the emotional development in childhood period, और राइट अबाउट द सोशल डेवलपमेंट एट चाइल्डहुड पीरियड और अर्ली चाइल्डहुड, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको प्रिपेयर करोगे तो शॉर्ट में भी हो जाएगा। एंड अनदर लॉन्ग क्वेश्चन इज 3.4, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, conflict resolution and the social development. So you don't have to prepare this point, conflict resolution and the social development, because this word carries the problems in the society and how you will resolve it or how you solve it by your different type of stages of development. Okay, so process of socialization contains the many points, just like the introduction, meaning, definition, then main
elements of socialization, process of socialization, stages of socialization, and types of socialization, etc., and factors affecting socialization. So these are the important points which you write here, okay, in this question. So these two are the long question, and after that all are short, all are short. बाकी के जो तीन है वो सारे शॉर्ट है, एंड इसको भी पढ़ चुके हो. डेवलपमेंटल टास्क लिखा है ना, डेवलपमेंटल टास्क मतलब हो गया कि उस डेवलपमेंट के बारे में लिखो, टोटल कैसे डेवलपमेंट होता है, हाउ डेवलपमेंटल प्रोसेस विल जस्ट लाइक मूविंग और विल बी गोइंग, जस्ट लाइक कैसे हो रहा है, अपब्रिंगिंग कैसे हो रहा है, आगे कैसे बढ़ रहे हो, वैसा. So characteristics of childhood, that means you have to write about the growth and development first, then their characteristics, their meaning, definition, and after that you have to write the childhood, then early and the later childhood period, and you have to explain the characteristics under that. इतना करोगे तो ये क्वेश्चन हो गया. ऑलरेडी हम लोग डन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी डन हो चुका है. नेक्स्टली देखो, चाइल्ड इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. ये क्या था बताओ, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने लास्ट एक क्वेश्चन पढ़ाया था जो कि एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स के साथ था, एडोलेसेंट प्रॉब्लम के साथ था. वहाँ पे आपको चाइल्डहुड के प्रॉब्लम्स के साथ लिखना है, तो उसको बाद में करेंगे. दिस वन इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट ए लॉन्ग क्वेश्चन, तो शॉर्ट को बाद में कर लेंगे, सेपरेट क्लासेस में करेंगे. आपके बुक से ही करोगे, बुक में अच्छा दिया गया इस पॉइंट में, सॉरी 3.3 में. सो ये प्रोसेस आज पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से करना है. अनदर शॉर्ट क्वेश्चन इज द सोशल स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट. दिस इज द प्ले, जो कि कुरुक्षेत्र की बुक में, पता है कुरुक्षेत्र के बुक में ये मेंशन नहीं है. दिस क्वेश्चन इज नॉट मेंशन इन द कुरुक्षेत्र बुक, but very much important because suddenly it was noticed that some questions are out of syllabus but come under this question paper or come under this paper, okay, 801 paper. So इसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे से होते हैं एंड वो फैक्टर्स हैं, इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है उसमें, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाता है. अब बीएड के टीचर्स हो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आंसर पे अटेंड करने पड़ते हैं थोड़ा बहुत. तो ये क्वेश्चन है, इसको करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो एक साथ पढ़ने हैं हमें. और देखो हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं. सोचो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस हो गया तो ऑलमोस्ट थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा एएनयू एंड वाईवीयू स्टूडेंट्स का. एंड द नेक्स्ट यूनिट इज एडोलेसेंस एज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिकॉज एडोलेसेंट period is a breeze between the childhood and adulthood के अंदर जो breeze है, that one is called adolescence. So that adolescent as a period of transition, shifting, ये shifting में रहता है. Then the next जो question है देखो, characteristics and needs in adolescent हो चुका है, नॉर्मल क्वेश्चन है जो पढ़ चुके हो. देन जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एडोलेसेंट. जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स पहले तो लिखो एडोलेसेंट में होता क्या है, फिर उसके प्रॉब्लम्स भी मैं दे चुकी हूँ आपको, ठीक है, उसको बस लिखना है, ठीक है. दिस वन इज शॉर्ट क्वेश्चन, 1 पेज वाला क्वेश्चन है, ये 1 पेज वाला क्वेश्चन है. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, ये दोनों को मिला के कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. अनदर 2 important long question of this unit is, that is a unit is नहीं होगा, R होगा, R mechanisms of adjustment with the special reference to defense mechanism and the holistic development. Defense mechanism एक question है कि how you control your anger or positively or negatively you solve your problems. सो उस बेसिस पे एक क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें शॉर्ट आएगा भी तो लिख सकते हो. एंड द लास्ट वन इज अ लीडरशिप कैरेक्टर. तो मैं बता दूं कुरुक्षेत्र बच्चे कि लीडरशिप क्वेश्चन तो आपके बुक में है नहीं, बट पेडागोजी हो, टीचर्स के लाइफ में हो, लीडरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. एंड दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीटेड. तो जिनको प्रिपेयर करना है तो यहाँ से एक बार एक ही साथ जब क्लासेस होंगे अटेंड कर लेना, मेरा सजेशन ये रहेगा, क्योंकि 1-2 दिन और एक्सटेंड होता है तो हो जाए, बट क्लासेस कवर हो जाए एंड पढ़ाई कर लो, ठीक है. समझ आई. यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. इन यूनिट 4 देयर आर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, द 4.2, 4.4, 4.5 एंड बाकी का शॉर्ट है. द लास्ट यूनिट 5 दैट इज द इंडिविजुअल डिफरेंस. आँख बंद करके देखो, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस ऑलरेडी मेंशन है. दिस वन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, एंड उसके बेसिस पे 1.4 चेक कर लो, 1.4 चेक कर लो, आपको मिल जाएगा. एंड 1.1 में भी आधे आंसर आएंगे. तो 1.4 इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. 1.1 में 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं. 1.1 में 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं. दैट इज 1.1 में देखो कॉग्निटिव एबिलिटीज. अच्छा, कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब हो गया कि पियाजेस का कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है, पियाजेस का कंसेप्ट पढ़े थे, बट समटाइम्स दैट पियाजेस कंसेप्ट इज नॉट taught here or mentioned here. Okay, that means here we have to write about the thinking abilities or IQ that is related to intelligence. Okay, related to intelligence. ये intelligence का question है,
थोड़ा सा मेंशन करके रखें, अदरवाइज भूल जाओगे। ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, आपके बुक में भी मेंशन है इंटेलिजेंस का क्वेश्चन। वहाँ पे अगर आप पियाजेस का कंसेप्ट लिख दोगे तो हाफ मार्क्स से भी कम हो जाएगा मार्क्स, एंड दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें 7-8 थ्योरीज है, 7 to 8 थ्योरीज है, एंड इस थ्योरी से क्वेश्चन आता है जस्ट लाइक द यूनिफैक्टर थ्योरी, ट्राइकिक थ्योरी, देन टू फैक्टर थ्योरी, गार्डनर्स थ्योरी, और भी है। ऐसे करके बहुत सारी थ्योरीज आएंगे, 7 से 8 थ्योरीज इसमें मेंशन होते हैं। तो सेपरेट वन फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हियर इज कॉग्निटिव एबिलिटीज और इंटेलिजेंस। सेकंड जो आपको प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर करना है पर्सनालिटी, पढ़ चुके हो, पर्सनालिटी पढ़ चुके हो, सेकंड वन। थर्ड वन इज द क्रिएटिविटी, ठीक है, थर्ड वन इज क्रिएटिविटी। तो देखो ये क्वेश्चन सबको पढ़ना है, ठीक है, कुरुक्षेत्र बच्चे आपको भी पढ़ना है। पर्सनालिटी ऑलरेडी डन, ओवर है, कर चुके हैं, व्यक्तित्व के ऊपर पढ़ाई कर चुके हैं। क्रिएटिविटी आपका भी है, क्रिएटिविटी आपका भी क्वेश्चन में है, आपके भी पेपर में है, मैं अभी पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी, बता दूंगी, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन अगेन इट कम्स अंडर दिस पॉइंट, ठीक है, एक साथ ही पढ़ना है। बाकी के बोलोगे मैम इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज़ का क्या करें? वैल्यूज़ का क्वेश्चन कुरुक्षेत्र बच्चों का नहीं है, एएनयू बच्चों का है। सो मैं बता दूं एएनयू बच्चे, आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, उसमें भी वैल्यूज़ एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक यूनिट है पूरा, 4th नंबर यूनिट आई थिंक, एंड उसमें पूरा यूनिट का नोट्स दूंगी तो उसी के साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है, एट ए टाइम 2 हो जाएगा। एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट से कभी क्वेश्चन नहीं आया, कभी क्वेश्चन नहीं आया, तो खुद से रीड कर लोगे, मैं पढ़ा दूंगी, ऐसे बता दूंगी, बट खुद से रीड कर लोगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अभी देखो द नेक्स्ट वन 1.3 में क्या है, 1.3 में क्या है, इसमें समझे कितना है, वहाँ पे 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। इन 1.1 देयर आर 4 लॉन्ग क्वेश्चंस, ओके। देन देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था 1.4, दिस वन इज अगेन ए लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, लर्निंग स्टाइल इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। एंड द फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों में क्रिएटिविटी आइडियाज़ को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाता है, बच्चों में क्रिएटिविटी आइडियाज़ को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाता है या क्या करना चाहिए। सो फोस्टरिंग एक्टिविटी और द टीचर्स रोल क्या है, टीचर्स का रोल क्या है, ठीक है, वैसा मेंशन करना कि एज पर द स्लो लर्नर हाउ टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स और हाउ टू फोस्टर देयर एक्टिविटीज़, मेन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके कैसे करना है उसको बताया जाता है। सो गिफ्टेड चाइल्ड में क्या करोगे, स्लो लर्नर्स में क्या करोगे, जो बच्चों में अटेंशन डेफिसिट है उनमें क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन है। एंड दिस वन इज ऑल्सो शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे लॉन्ग मेंशन कर दिया था, ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। तो इस यूनिट में आपको टोटल मिला 5 लॉन्ग क्वेश्चन, ओके, 5 लॉन्ग क्वेश्चन मिला। 4th यूनिट में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिला, ठीक है, 5, 3, 8। इसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिले थे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 10 के साथ यहाँ पे मैंने 3 लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन किया, 13 ओके, अनदर हाँ 13 के साथ यहाँ पे 4 लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन किया, शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, इतने क्वेश्चंस हैं। सो मतलब सोच लो अराउंड 16 to 17 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बाकी सारे शॉर्ट है। वो लॉन्ग क्वेश्चंस करोगे तो शॉर्ट में भी हो जाएगा, लॉन्ग में भी हो जाएगा, दैट्स इट, इतना है एएनयू के लिए, ठीक है। ये पूरा पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया, क्वेश्चंस लिख के भी दे दूंगी, ठीक है, आफ्टर संडे, दिस संडे, ओके, बिकॉज एग्जाम में रहूँगी तो उसके बाद मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे लिखने में ना ढूंढ के थोड़ा सा टाइम लगता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के बेसिस पे भी मेंशन करना है। एंड इसको अगर ऐसे प्रिपेयर कर देते हो तो यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ भी नहीं चाहिए, सिलेक्टिव्स भी नहीं चाहिए, जिस वजह से पढ़ने को बोल रही हूँ उस वजह से पढ़ोगे, आपके सीटेट भी क्लियर हो जाएंगे, आपके पेपर्स भी क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो आई होप समझ आया हो, इसको अपलोड भी कर दूंगी, देख लेना बाद में।